physically, financially. You will get perfect solution for your each problem here. We have experts who are nationally and internationally certified and qualified. You will not only learn in Simha but earn too. So, are you ready? Are you ready for learning tools to make your life better? So let me introduce with our first coach of today. Please welcome her. She is Kavita ma'am. Please welcome Kavita ma'am. Let me introduce her. You can welcome her in chat box, please. Kavita Mugesh ma'am is certified clinical hypnotherapist, international certified transpersonal regression therapist, access consciousness therapist, radical facilitator, radical healer, life skill trainer, relationship counselor, facilitator, certified new code NLP therapy practitioner, certified inner child healing therapist, psychologist, Kavita Mugesh ma'am has been training people all over India in alternative therapies, mind related subjects. She has been working on people with thyroid problems, drug addiction, anxiety, stress, most of the psychological, physical, and relationship challenges. Through her therapy, she has guided hundreds of people and transformed their life all over the world. By using alternative therapy and counseling methods, she has healed many people. She is also founder of Siddhi in Bengaluru. Welcome you, ma'am. Over to you, Kavita, ma'am. Thank you, Sonali ji. Good evening, everyone, friends. Today I'm here on behalf of Simha Siddhi Integrated Master Healer Academy. Simha is a space for holistic learning and healing. Simha is an integrated revolutionary healing system which provides the platform to learn various healing techniques from various healing modalities. Many of us think knowing and learning the healing modality is not for everyone. Actually speaking, in day-to-day's life, knowing and learning the alternative healing therapy is very, very important. In today's time and age, we are recognizing more and more the effects the bodies are having with what we put inside of it. So alternative therapists are taking huge role on this aspect. Even healthcare professionals nowadays, they are more open to alternative healing techniques and the benefits for it can have got the body. So before that, I'll just give my slides. Simha is a space for holistic learning and healing. And this is Kavita Mukesh. I would like to welcome everyone for this free webinar and give your time and to know the knowledge of this alternative healing technique. So before that, in this webinar, who all are here, you might be a seeker or therapist or healer. Are you feeling to shape out your knowledge in alternative healing therapy techniques? Are you tired of learning different healing modality from various schools? Are you looking for a course where you will learn different healing technique in one place? Do you want to explore your healing resources? Do you want to get connected with the healer within you? Then you are in the right place. I will take you step by step. Before we begin, do you know that everything begins with a thought? Today I'm talking about Simha. It has begun with a one single thought that why don't we simplify the learning system instead of learning various healing techniques from various schools. So because of that one thought, we are here. To understand the thought, we need to understand about our mind. Our mind is a non-physical form. Our thoughts are surface of our mind. Our well-being of mind and body is based on that particular thought which we choose.
And with this awareness, I will take you to that about Simha. Simha is a space for holistic learning and healing. Simha is an integrated healing revolutionary system which provides holistic learning system for holistic living and healing. Simha, developed by CDD, combines the many benefits of NLP and clinical hypnotherapy with past life regression, health psychology to produce a simple but profound approach to give best result for the healthcare service. Simha background includes inner child healing therapy, relationship counseling, and training. Therefore, you can look forward to this online course that will fascinate you and will create a fun as well as a time of profound healing and growth for yourself. Our vision, we aspire to expand and reach out to many more people to guide them to learn alternative healing modality and guide to serve the needy and provide perpetual healing to their suffering. We hope for and strive towards creating awareness in the society to make them realize the potential of holistic healing. So course content, what I'm going to teach through Simha from my side, I'll be taking clinical hypnotherapy, past life regression therapy, health psychology, relationship counseling, inner child healing therapy. These are the topics, these are the technique I'm going to teach through Simha course. Clinical hypnotherapy, everyone aware of it. Clinical hypnotherapy. Hypnosis is an altered state of mind where a trained psychotherapist established a direct link with the subconscious brain and derived desired insight from the deep within. It means that when the mind will through trance, we will take a client into that subconscious where the mind is open to receive the information and give the information. During that time, we will work on the client and we will resolve the issues. This is a very, very important technique. Clinical hypnotherapy is one of the profound modalities used to treat wide range of conditions such as addiction, behavior disorder, anxiety, stress, depression, sleep disorders, grief, loss, trauma, and chronic pain. So through clinical hypnotherapy, you are able to resolve various kind of issues. Past life regression therapy. Regression means anything you go back and relive that. When you relive it from your subconscious level, whatever it is there in the cellular memories will just come out and you will feel it in your body level. So we will work on this aspect. If you, whatever you, most of us facing chronic pain, any pattern, any negative pattern which it is following in their life, any kind of issues, we will take back to that particular past life from where it is coming. We will resolve it there from the subconscious level. We will bring them and that will manifest in their life. Whatever it is there in the subconscious level, it will manifest. So once you resolve that issue from the subconscious level, that will start to manifest in your life. So past life regression therapy is a very important technique. It will help to resolve many of the issues, psychological issues, physical issues, even relationship issues also. Through past life regression therapy, we can resolve it because all the pre-programmed cellular memories are there in our subconscious level, in our body level. So we can resolve that through this past life regression, most of the issues, whether it is a physical, psychological, any kind of issues, if you regress back, you are able to resolve it in the subconscious level. Once you resolve it in the subconscious level, once your subconscious is understood, once your subconscious feel that it is over, then that issue, whatever issue you are going through in your life will get stopped and you will see the transformation in your life. So past life regression therapy will play a huge role once if you start to learn it and you will understand this technique, and if you start to use it on the client, it will play a huge role in your therapeutic field. Inner child healing therapy, this is also very, very important technique.
in the sense like most of us are, as we all are going through trauma in and time and space, but during that time our part of us will get shattered and will stuck in that time and space capsule. We forget it, we don't even recognize it. In if something has happened, we just 1 or 2 days we go through trauma. It will take 1 week to overcome or 1 month to overcome. Once you feel that I have overcome from that place, from that event, but our subconscious mind is holding back. The part of you who underwent that trauma, it's stuck in the time and space capsule is there. That's why we go through a lot of issues after some, whenever you go through any trauma after a period of sometimes, unless until you resolve it from the subconscious level, it will affect the physical body or psychological issues. So once you learn this inner child technique, okay, whether you become a therapist, whether you heal others, that is secondary. Once you learn this inner child healing therapy, it will heal your own part, because we all are carrying a lot of inner child. Okay, everything is inner child. Every beliefs you are having, that is one of your inner child is holding. You feel that it is my character, it is my belief. Because one of your part of personality is holding that belief in your subconscious level. Unless until you go back and resolve it, smoking addictions, drug addictions, any people, why they are unable to come out, because their past is stuck there holding that emotions. They would have gone through so many pleasure moments because of smoking, alcohol, so all the part is holding there in the subconscious level. So consciously we feel that I want to overcome from the drug, I want to overcome from this habit, but we are consciously we are taking decision, but unconsciously we are holding it in the subconscious level, we are unable to overcome. So through this therapy, you can go back to that part, you can heal that part, you can bring that and integrate with the present today's part. So this is the very important healing technique. Once you learn this inner child healing technique, you can mix it with any kind of, you can be any kind of alternative. There are any number of techniques are available in the market. So whatever you are specialist in that, once you know this inner child healing therapy technique, you are able to master it and you can mix it with any kind of thing and you can give the best result in the healthcare service. And the health psychology. So health psychology plays very important role in alternative therapy, because once you understand this, any issues you are going through, whether it is a health issues, where any kind of healthcare health issues or physical issues, once you understand how biological, environment, psychological and socio-cultural factor influence the health. So one, even if a normal person, even if you don't want to heal, enter into learn it, even if you don't want to do anything to others, once you learn all this technique, once you learn all this itself will bring a huge shift in your life, because awareness will bring a huge shift in your life. So this is every common people must understand this knowledge. If you understand the health psychology, any of this healing technique, if you understand it and see the difference in your life. And relationship counseling, because relationship issues are most important. It's nowadays everywhere it is going, whether it is a husband and wife, whether it's a parent and children, or everywhere this relationship issues going on, because of the perception, because we look at other person from our own perception, that person look at others with their own perception, because that there only misunderstanding starts. So during using this relation counseling, so I'll be teaching some technique where you can learn it and you can use it for yourself. Once you learn this technique itself, the perception, the relationship, understanding about the relationship itself completely will get a shift. Okay, so these are the technique whatever I'm going to teach. If you're a seeker means for our day-to-day life, if you know this knowledge itself, it will bring a huge shift. If you're a healer already, if you're already in a healing profession, you may be healing any reiki or any kind of energy work, if you know this, you can use it, you can mix this knowledge with any kind of healing modality and you can use it. Or already if you're a therapist, because everyone cannot learn all the technique, so you might be you have learned some technique and you want to improve your skills, means by learning these techniques definitely you can improve your therapeutic technique. That's why we have designed this curriculum for everyone. So what is a huge benefit of this course?
What happens? You go to different school and you will learn different healing technique, right? Once you learn the technique, and you may find difficulty to understand the technique which will suit for you as well as which will suit for your client. Okay. Another thing, you may find a difficulty to get connect with the facilitator. Okay, to get to, if you have any doubt, if you want to get connect with it, you may find difficulty. Another thing is, you may find difficult to spend more money on different healing techniques from different schools. There are n number of techniques are available from various schools, okay, as well as time. So our team, we have been doing research on it quite a period of time, and we have come up with this Simha, where we are going to teach various techniques from different schools, which will give you the best result in the healthcare service. Most important aspect is that you are going to learn all this technique in one space through online classes, which will save your time as well as your money. Okay, many of us think that learning healing modality is not for everyone. It is difficult. Actually speaking, it is very easy if you learn it in a right way. What you need to do it, there are very three important things from my side. I would like to say that deeper understanding of the concept, okay, learning techniques and the skills. Another thing is practice. So especially in this therapeutic line, the practice will make you perfect. So Simha focus on all these aspect, and we have designed our curriculum on this basis. Okay, through online classes, what we are going to teach, we are going to teach the technique, we are going to teach the concept, and we are going to give the practice. Concept means a deeper understanding of the subject. So what is once you understand the subject very well, you will be able to master the technique. Once you master the technique, you can apply this technique any kind of a challenge. They will also guide you to deal with a lot of challenges. Okay. So Simha focuses on holistic approaches on holistic healing to learn to heal yourself as well as to heal others for a holistic living and healing. And we believe that the body's natural healing power is the greatest factor in getting well. So we all have the healing resources. So our aim at Simha, we focus on those healing resources will guide you to make you understand to connect with those healing resources, which will definitely bring a transformation, inner transformation. That inner transformation will bring the outer transformation in your life. Okay. Simha focus on teaching how to identify the root cause of the problem. Okay, instead of before work towards achieving health and wellness of mind and body, we will guide you how, because root cause, if for any problem, if you understand the root cause, all the peripheral issues will get resolved. So we guide you, we make you understand, we'll teach you how to identify the root cause of the problem, and we will, Simha will give you the awareness how why self-healing is important, and Simha will give you the knowledge about thought, emotions, energy, body. Okay, Simha not only I will teach you the technique, Simha will give you the space to get connect within yourself to awaken the healer within you. So are you ready to awaken healer within you, to grow, evolve, to learn and grow and evolve? If you are ready, just type S in the chat box. Thanks for everyone. Thank you very much, Kavita ma'am. You can see lots of feedback from audience and people. Thank you, people. Now let me introduce to our second coach. Our second coach is Sachin Dute sir. Sachin sir, Sachin sir is Master Certified Life Coach, Wellness Coach, Mind Power Trainer, Certified NLP Master, Practitioner, and Coach. Certified Catharsis Trainer. This is a technique which is used to vent up suppressed emotions. Sachin sir is also certified in Firewalk Trainer, Hypnotherapist, and Trainer of DMRC. Sir has conducted workshops all over India, places like Delhi, Mumbai, Raipur, Pune, Kolkata, and many more. He's working since 2014, dealing and healing with people who are suffering
from unpleasant situation, stress, anxiety, physical illness, frustration, depression, and many more. Sir has created a belief in them, a mindset in them, so that one can face any ill situation and lead life successfully. We welcome you, Sachin sir. Over to you. Please welcome Sachin Dute sir. Thank you so much, Sonali ma'am. Thank you so much, all of you. Am I audible to all? Please, yes. Type yes in a chat box. Thank you so much. एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग वीडियो ऑन करके जुड़ेंगे तो एक एज अ फैमिली में जो कुछ भी आपको देना चाहता हूँ आज, तो एक रिक्वेस्ट है सभी से, आप सभी वीडियो ऑन करके जुड़े तो ताकि हमारा बेहतर कन्वर्सेशन हो पाए, आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाऊँ मैं. थैंक यू सो मच. कमल सर थैंक यू, शरद सर, भारती मैम थैंक यू सो मच, सरिता मैडम, बालकृष्ण जी वेरी गुड, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. जसविंदर जी थैंक यू. तो जीवन में या तो हम आगे बढ़ते या करते, आइदर वी ग्रो और डीके. ये कहना है महान दार्शनिक, महान फिलोसोफर खलील जिब्रान जी का. दोस्तों, हमारा ह्यूमन माइंड एक जगह पर टिक कर नहीं रहना चाहता, वो हमेशा हर पल आगे बढ़ते रहना चाहता है. सोशली, इमोशनली, फाइनेंशियली, वो हर एक डोमेन में आगे बढ़ना चाहता है. लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं वैसा ही हूं जैसा कल था, वही स्थिति में हूं जैसा कल था, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपने अपने जीवन के बहुमूल्य 24 घंटे गवा दिए हैं. जी हाँ दोस्तों, 24 आवर्स आपने अपने जीवन के गवा दिए. नमस्कार, मेरा नाम है सचिन दिवटे और सिम्हा की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. अगले कुछ समय में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ लाइफ स्किल. मेरा कैमरा ऑन है. एम आई नॉट विजिबल? Sir, for all people around, it was request to please on the camera for them. ओके. और अगले कुछ समय में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ लाइफ स्किल्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स को जिससे आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सके. जी हाँ दोस्तों, अपनी बेहतर सेहत के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपने बेहतर रिश्तों के लिए, और साथ ही मैं मदद कर सके उन्हें और अपने बच्चों को, जिससे वे अपने माइंड को प्रोग्राम करें और वो एंजाइटी से निकलकर कामनेस की तरफ जाए, डिप्रेशन से निकलकर डिलाइटफुलनेस की तरफ जाए, और वे फील करे कि वे जीवन में एक विक्टिम नहीं, एक विक्टर है, एक विनर है. और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा पूरे दिल से करूंगा. मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया है, जीवन में जब भी देना पूरे दिल से देना, बिना किसी रैशनिंग के देना. तो क्या आप सब तैयार है? आर यू रेडी? प्लीज टाइप यस इन ए चैट बॉक्स. अगर आप सब रेडी है तो यस टाइप कीजिए चैट बॉक्स में. थैंक यू सो मच किन जी, किन साहब. आज हम चारों तरफ समाज में देखते हैं तो पाते हैं कि देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयां स्ट्रेस की है, डिप्रेशन की है, एंजाइटी की है, या फिर स्लीपिंग पिल्स है. और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एंड लाइफस्टाइल डिजीज के केस लगातार बढ़ते रहे, रिश्ते टूट रहे. हमारा देश में हर एक घंटे में एक स्टूडेंट आत्महत्या कर रहा है. ये मैं नहीं कर रहा हूं, एक सर्वे कह रहा है, जो न्यूज में भी रिलीज हो गया. ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही दर्दनाक है. वो आत्महत्या स्टूडेंट इसके लिए कर रहा है कि उसके पास कोई स्किल नहीं है, ऐसा नहीं है, या उसके पास कोई पोटेंशियल की कमी नहीं है, या फिर उसकी कैपेबिलिटी में भी कोई कमी नहीं है, बल्कि इसके लिए क्योंकि उसे कभी सिखाया ही नहीं जाता कि अपने माइंड को कैसे यूज करे, कैसे प्रोग्राम करे. एक तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का शरीर हमें मिलता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि जहां हमें फोकस करना था अपनी वेलनेस पर, अपनी सफलता पर, अपने बेहतर रिश्तों पर, वहां हम अनरिलेटेड और अनलिमिटेड पेन में फंस गए हैं। दोस्तों, आज हमें जरूरत है उन लाइफ स्किल की जो हमें सही राह दिखाए। इससे पहले मैं आपसे उन टेक्निक्स को शेयर करूं, चलिए एक गेम के साथ शुरू करते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे गेम खेलने के लिए। बस रूल्स इसमें एक ही होगा, आपको 2 डिजिट के नंबर्स मुझे बताने या चैट बॉक्स में टाइप करने हैं। नीलिमा मैम, ओके, सोनाली मैम, कोई भी एक मुझे उस चैट बॉक्स में से बताइएगा। 24। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। Yes. 1 5 15. 1 5 ना 15। Yes. 1 1 11. 2 2 22. 1 9 19. 4 7 47. 4 5 45. 9 9 99. 5 5 55. 4 Hello, 5 hello, 45. Yes. 4 5 ओके, 45. 4 5 के बाद 9 9 हाँ 9 9 99. 5 5 55. 1 0 10. और बताइए नंबर बस प्लीज शेयर कीजिए। और नंबर शेयर आप रिपीट कीजिए। भी कर सकते हैं, किसी को डबल टिबल लिख सकते हैं, आप 2-3 बार लिख सकते हो। 1 5 15. 4 4 44. 1 1 11. 6 9 69. 6 6 66. 1 3 एक 13. मिनट 6 9 बराबर है ना? 69. हाँ 66 66 66. 1 3 13. 8 7 87. 6 5 65. 3 6 36. 8 6 86. That's it. और किसी 3 जन को बोलिए। और कोई प्लीज शेयर कीजिए 2 डिजिट नंबर। ओके 9999. One more please. 9999. 8383. 4747. 4747. 6262. ओके, आप सभी से रिक्वेस्ट है ये अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा प्लीज।
जल्दी से नोट कर लीजिए। सबका हो गया तो डन करके चैट में लिख दीजिए प्लीज। अगर हो गया तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, अगर हो गया हो तो। ओके, डन डन, बहुत सारे लोगों का है, वेरी गुड। बोर्ड लगभग भर चुका है। इसे देखकर लगता है कोई आइंस्टाइन का फॉर्मूला है जो आज आपके अंदर से बोल रहे थे। ठीक है, अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि इस फॉर्मूला, इस नंबर को अगर आपको याद करना हो तो कितने समय में याद कर लोगे? टाइप कीजिए, कितना समय लगेगा आपको? चैट बॉक्स मेरा नहीं, आपको कितना समय लगेगा अगर ये नंबर जैसे के वैसे याद करने ऑर्डर में? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 1 वीक, या इम्पॉसिबल है, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। ओके ओके, कुछ लोगों के चेहरे बता रहे कि ये मुश्किल है, कुछ लोगों के चेहरे बता रहे कि थोड़ा समय इसे रखना होगा, दोहराना होगा, और कुछ लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि ये असंभव, इम्पॉसिबल है। जरा सोचिए कि हम ये काम आसान है या मुश्किल है। ये जवाब आपके पास आया कहाँ से? ये आपको कैसे पता चला कि आप इसे याद कर सकते हैं या नहीं? मैं बताता हूँ। ये जवाब आपके पास आया आपके पास एक्सपीरियंस से। जब भी आप किसी सिचुएशन में या परिस्थिति में होते हैं और अपने माइंड को उसका हल पूछते हैं, तो हमारा माइंड अपने पास एक्सपीरियंस में जाकर अपने 80 बिलियन न्यूरॉन्स, 800 करोड़ न्यूरॉन्स में घूमकर यह बताता है कि यह काम होगा या नहीं। जितनी देर में हम पलक झपकाते हैं उससे कई लाख गुना गति तेजी से ये न्यूरॉन्स से पूछ कर आता है आपका माइंड कि ये काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। सोचिए और अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि यदि आपका माइंड किसी सिचुएशन में, किसी टास्क में ये कह दे कि ये काम मुश्किल है या ये इम्पॉसिबल है, तो क्या आप उसे पूरा करने में अपना पूरा प्रयास लगाएंगे, पूरा एफर्ट लगा पाएंगे? चलिए एक उदाहरण के जैसे मैं समझाता हूं आपको। आप अपने घर पर खाने के टेबल पर बैठते हैं और देखते हैं कि टेबल पर नमक नहीं है, और आप अपने बच्चे से कहते हैं कि जा और रसोई घर में जाकर नमक लेकर आओ। आपका बच्चा कहता है कि उसे नमक नहीं मिलेगा। आप फिर भी उससे कहते हैं कि आप एक आज्ञाकारी बच्चे हो, तो आप जाइए और नमक लेकर आइए।
आपका बच्चा बड़े अनमने मन से रसोई घर में जाता है और वहीं से आवाज लगाता है, मम्मा मुझे नमक नहीं मिलेगा, मम्मा मुझे नमक नहीं मिल रहा है, यहाँ है ही नहीं नमक। और जब आप रसोई घर में जाते हो तो कहते हैं ये क्या, नमक सामने तो रखा है। कभी आपने इस छोटी सी बात पर ध्यान दिया है, जब नमक वहीं पे था तो बच्चे को दिखाई क्यों नहीं दिया? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बच्चे ने अपने माइंड को ये कमांड दी थी कि उसे नमक नहीं मिलेगा, तो उसके माइंड ने ये नमक की इमेज को ही उड़ा दिया, डिलीट कर दिया, क्योंकि नमक के न मिलने में ही उसकी जीत है। हमारा माइंड हमेशा हमको जिताना चाहता है। चलिए, ये जो फॉर्मूला है आपने जो लिखवाया है मुझे, उसे मैंने लिखते समय ही अपने न्यूरॉन्स के पास भेज दिया था, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे माइंड ने इसको याद कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपको इसे शुरू से अंत तक दोहराऊंगा, कहीं कोई गलती होती तो मुझे अंत में बताइएगा प्लीज। पहले तो मैं इसे डिलीट कर देता हूं। मुझे बताइए, आवाज मेरा नॉर्मल ही, एक्चुअली ये ब्लूटूथ में से वॉल्यूम उसका तेज है। आप अपना ओके, मुझे बताइए, मैं आंखों पे पट्टी बांधकर करूं या फिर आंखें बंद करके करूं? मैसेज में लिखिए मास्क या क्लोज्ड आई, मास्क या क्लोज्ड आई। पट्टी, ओके। ओके, the number is 24151122194745. then number is 995510, then number is 1544, then number is 1169661387653686, then number is 86 के बाद 99834762. Am I correct, friends? Thank you so much, Pin Shah ji, Bharti ji. थैंक यू बालकृष्णा जी। चलिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला मुझे रिवर्स ऑर्डर में भी याद है। क्या आप सुनना चाहेंगे इसे रिवर्स ऑर्डर में भी? अगर रिवर्स ऑर्डर में सुनना चाहेंगे तो यस टाइप कीजिए प्लीज चैट बॉक्स में। ओके, तो अभी मैं, किसी ने कहा था क्लोज आइज के साथ, तो मैं क्लोज आइज के साथ करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो कि ये मास्क में कुछ था क्या लिखा हुआ नंबर। ओके ओके, द नंबर इज 267438, देन नंबर इज 996836383166961144510155, देन नंबर इज 55 हो गया, 99
then number is 54, then 7491221151, last number is 42. Am I correct? Thank you, Jaswinder ji. Thank you, Kinsha ji. थैंक यू बालकृष्ण जी। अभी आपने ह्यूमन माइंड की पावर का एक छोटा सा उदाहरण देखा। अभी जो मॉड्यूल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो करीब करीब 10 किताबों का जिस्ट के बराबर होगा। ध्यान से सुनिएगा, यह मॉड्यूल आपको बताएगा कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसको परसीव करते हैं। कंधे को सीधा करके बैठिएगा, सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठे प्लीज, और अपनी स्पाइन, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है रीढ़ की हड्डी हमारा पहला ब्रेन होती है। ये आप और हम ऐसा सोच लेते थोड़ी देर के लिए, हालांकि आप इससे स्मार्ट है, थोड़ी देर के लिए मान लेते। हम हमारे जीवन में, हमारे आपके और हमारे जीवन में हमेशा ये घटना, इवेंट घटती रहती है। हम और आप आज यहाँ बैठे हैं, यह भी एक घटना, एक इवेंट है। आपने घर पे लैपटॉप ऑन करके या मोबाइल ऑन करके ये सेमिनार अटेंड कर रहे हो, ये भी एक इवेंट है। इन इवेंट से हमारा माइंड लगातार इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा होता है। बचपन से लेकर आज तक, आप जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ इवेंट होते रहती है, यह हमारे सेंसेस के द्वारा हम तक पहुंचती है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, इसके लिए हमें अपनी आंखों का यानी विजुअल सेंस का प्रयोग करना होगा। हमें किसी मैप को, डायग्राम को, किसी ब्लूप्रिंट को याद करना हो, समझना हो, तो हमें उसे देखना ही होगा। कुछ चीजों को आप सुनकर रिसीव करते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपको सुन सकता हूं, इसके लिए हमने अपने कान यानी ऑडिटरी सेंस का इस्तेमाल करना होगा। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें उसकी साउंड को सुनना होगा। याद रखिएगा, जो बच्चे गूंगे होते हैं, जो बच्चे गूंगे होते हैं, बोल नहीं सकते, वो पहले बहरे होते हैं पहले, क्योंकि उनको साउंड सुना ही नहीं देता, साउंड समझ नहीं पाते, इसके लिए वो बोल नहीं पाते। कुछ चीजों को हम ना देख सकते ना सुन सकते, हमें उन्हें अपने स्किन यानी मसल्स के द्वारा फील करना होगा। उदाहरण के लिए ये लैपटॉप या ये टेबल कितना गर्म है या ठंडा है, इसके लिए मुझे इसे टच करना होगा, राइट? क्योंकि बायोलॉजी में फीलिंग को काइनेस्थेसिया कहा जाता है, इसलिए इसे हम काइनेस्थेटिक सेंसेस कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंस है हमारी बॉडी में। हमारी स्किन में अरबों खरबों सेंसेस लगे होते हैं। और बात है कि अत्यधिक टोबैको और अल्कोहल का प्रयोग करके हम उसे खराब कर देते। हमारे पास दो सेंसेस और होती है, ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी। ये हमें स्मेल और टेस्ट का एहसास कराती है। कोई चीज खुशबूदार है या बदबूदार, कोई चीज खट्टी है या मीठी। ये ह्यूमन माइंड की लर्निंग में इन दोनों सेंसेस का इस्तेमाल काफी कम होता है। वो अपनी विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक सेंस के माध्यम से ज्यादा लर्न करता है। अब प्रश्न आता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड में रिसीव की है, जो कि तो माइंड में पहुंचती है, ध्यान दीजिएगा, हमारा माइंड इस रिसीव्ड इंफॉर्मेशन के साथ एक मजेदार गेम खेलता है, डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइजेशन करने का। ये गेम आपको मैं अभी समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा सभी लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। हमारा माइंड कुछ इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है, कुछ इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है। इसका मतलब आप घर से मार्केट जाते हो, स्टेशन जाते हो या ऑफिस जाते हो, आपने रास्ते में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सी गाड़ियां देखी होगी, बहुत सी बिल्डिंग्स देखी होगी, बहुत सारे पेड़ देखे होंगे।
उसमें से आपका दिमाग अधिकतर जानकारी को डिलीट कर चुका होता है। एक सर्वे के अनुसार हमारा दिमाग हर पल में 25 लाख 2.5 मिलियन इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा होता है, जिसमें से उसे याद रहती है सिर्फ 5 से 7, वो भी इंटेलिजेंटली अगर उसने याद की हो तो। यह अच्छा भी है और खराब भी। अच्छा इसलिए है कि हमारे पास बेकार का गार्बेज इकट्ठा नहीं होता, सिर्फ रिलेवेंट जानकारी ही हमें याद रहती है। और खराब इसके लिए है कि यदि स्टूडेंट को पढ़ाई करते समय जिस इंफॉर्मेशन को याद रखना था उसे ही अगर वो डिलीट कर रहे दे तो वो पढ़ाई उसके काम की नहीं। रिश्तों में जो बातें याद रखनी थी उन्हें वो डिलीट कर दे, और जिन्हें भुलाना था उन्हें वो याद रखे, तो रिश्ता टूटने लगता है, कमजोर होने लगता है। दूसरा, माइंड इस इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देता है। याद रखेगा, हम घटनाओं को वैसे नहीं लेते जैसे वो घटती है, बल्कि वैसे लेते हैं जैसे हम चाहते हैं। अगर हम किसी के गाल को प्यार से टच करें तो हम उसे कहेंगे सूदिंग टच, सूदिंग टच। और अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो इसे हम ये नहीं कहेंगे इंटेंसिफाइड सूदिंग टच, बल्कि हम इसका स्लैप यानी थप्पड़ ऐसा लगा देंगे, और रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। एक बार एक डॉक्टर साहब ने शराब से होने वाले नुकसान को समझाने के लिए एक डेमो रखा गांव में। उन्होंने 2 जार लिए, एक में पानी रखा और दूसरे में शराब भरी। एक ही प्रकार के 2 कीड़ों को उनमें रखा गया। पानी के जार वाला कीड़ा तैरता रहा, और जबकि शराब के जार वाला कीड़ा थोड़ी देर में डूबकर मर गया। जब डॉक्टर साहब ने ऑडियंस से फीडबैक पूछा तो एक सज्जन का जवाब आया, हाथ उठाया, बोला सर मैं समझ गया। डॉक्टर साहब ने बोला बताओ, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा समझा, बताओ क्या समझे आप। उसने कहा शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, और इसी प्रकार हम अपने हिसाब से घटनाओं को डिस्टॉर्ट कर देते, यानी उस इवेंट को अपना अर्थ दे देते। तीसरा काम जो माइंड करता है वो उस इंफॉर्मेशन को अपने पुराने यकीन और जानकारी से मिलाता है और बार बार होने वाली घटनाओं को जनरलाइज कर देता है। मान लीजिए कि आप किसी इलाके में घूमने जाए और आपकी जेब कट जाए, आप दोबारा पर वहां घूमने जाए और दोबारा से आपकी जेब कट जाए, आप मानेंगे कि यहाँ जेब कतरे रहते हैं। हो सकता है कि वहां एक ही जेब कतरा रहता है और उसने अपने जीवन में 2 ही बार जेब काटी थी और वो आप ही थे, मगर आपका माइंड ये जनरलाइज करता है कि वहां सारे के सारे लोग जेब कतरे रहते हैं। इस डिलीट, डिस्टॉर्टेड एंड जनरलाइज इंफॉर्मेशन को माइंड परसीव करता है, और ये बहुत तेजी से घटित होता है। इसे ही हम परसेप्शन कहते हैं, मतलब समझना जिसे कहते हैं, ये इसी को कहते हैं। इसी से ही सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या सबकॉन्शियस इम्प्रिंट भी कहा जाता है। मेडिकल साइंस में इसे न्यूरल पाथवे कहा जाता है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट एरिक बर्नी ने इसे सबकॉन्शियस स्क्रिप्ट कहा है, और इसी को हम आम लैंग्वेज में मेमोरी कहते हैं। और यहीं पे रखा है आपका कॉन्फिडेंस, आपके बिलीफ, आपके पुराने गिल्ट, आपका रिग्रेट, आपकी पर्सनल रिसेप्शन। इसकी एक क्वालिटी एक स्थिति को जन्म देती है, और वो है स्टेट। इसी स्टेट को मनोदशा या मनोस्थिति कहते हैं। स्पोर्ट में इसे हम फॉर्म कहते हैं, कॉर्पोरेट में इसे जोन ऑफ एक्सपीरियंस कहा जाता है, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट इसे ग्रूव कहते हैं, और आम आदमी इसे मूड के नाम से जानता है। हमारी पर्सनल रिसेप्शन के हिसाब हमारी स्टेट पर्सनल रिसेप्शन के हिसाब से बदलती रहती है। मैं आपको एक शब्द बोलता हूं, पिज्जा या फिर गर्मा गर्म समोसा। मैंने तो एक शब्द बोला था आपको, एक साउंड क्रिएट की थी, जबकि आपके माइंड ने इसे डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करके इसकी इमेज भी बना ली, और कुछ के मुंह तो किसी के मुंह में तो पानी भी आ गया। सोचिए दिन भर कितनी बार हमारी स्टेट बदलती होगी। ये स्टेट पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी। जब भी आप पॉजिटिव स्टेट में होते हैं तो आप महसूस करते हैं हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइटफुलनेस। इसी पॉजिटिव स्टेट में रहती है आपकी बॉडी की हीलिंग पावर, जिससे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन,
जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। इसके उल्टे अगर हम नेगेटिव स्टेट में है तो इमरजेंसी हार्मोन्स निकलने लगते हैं, जैसे एड्रेनलिन और कोर्टिसोल, जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में निकलने चाहिए फ्रेंड्स। नेगेटिव स्टेट में आप फील करते हैं सैडनेस, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, इलनेस। इलनेस हमारे माइंड की एक स्टेट है जिससे बॉडी स्वयं को, खुद को हील नहीं कर पाती। यदि आप एक बिजनेस पर्सन हो तो आपको बेहतर निर्णय लेने के लिए डिसीजन मेकिंग की स्टेट में होना चाहिए, ना कि कंफ्यूजन की स्टेट में। यदि आप स्टूडेंट हो तो आपको कंसंट्रेशन की स्टेट में होना चाहिए। यदि आप अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हो तो आपको टुगेदरनेस की स्टेट में होना चाहिए दोस्तों, ना कि लोनलीनेस के स्टेट में। इस पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेट को रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल स्टेट कहा जाता है। आप अपने रिसोर्स को ढूंढ नहीं पाते जबकि वो आपके आसपास ही उपलब्ध है। स्टेट के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं और हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। हमारा माइंड हमेशा इश्यूज को, चैलेंजेस को रिजॉल्व करना चाहता है, इसलिए हम इसे रिजॉल्व और अनरिजॉल्व स्टेट भी कहते हैं। रिजॉल्व स्टेट में हमारा माइंड ज्यादा नहीं ठहरता, वो उसे भुला देता है क्योंकि वो उसे रिजॉल्व कर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जिन इश्यूज को वो रिजॉल्व नहीं कर पाता वो वहां पर अटका रहता है, उन्हें पकड़े रहता है। इन इश्यूज को दीपक चोपड़ा ने क्वांटम ऑफ हीलिंग में अनफिनिश्ड एजेंडा कहा है। ये इश्यूज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हो सकता है। किसी के साथ बचपन में कोई अब्यूज हुआ हो या कोई बड़ा फेलियर हुआ हो, कोई इंसल्ट हुई हो, कोई बुरी घटना हुई हो, किसी अपने को खोया हो जिसे माइंड ने एक इश्यू बनाकर, इस कंसर्न को समझकर, एक मसला समझकर अपने पास रख लिया है। कैलेंडर पे कैलेंडर बीत गए लेकिन एक वह इश्यू अभी भी ताजा है। आज हम इस फ्री सेमिनार में इन्हें हटाने में मैं आपकी सहायता करूंगा। सपोज ये आपका पास्ट है और पास्ट ने आपको पकड़ के रखा है, तो आपका फ्यूचर भले कितना ही ब्राइट हो, वो आपको लेके जाना चाहता है आपके फ्यूचर की तरफ। लेकिन अगर आपके पास्ट ने आपको पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, तो क्या आप जा पाओगे फ्यूचर की तरफ अपनी? बताइए मुझे यस और नो टाइप करके। तो आज हम इसी वक्त आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसे कट करें। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कौन कौन चाहता है अपनी पुरानी मेमोरीज को डिलीट करना? वीडियोस ऑन करेंगे, इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं। ओके, वीडियोस ऑन करके हैंड रेज कीजिए जिस किसी को भी मेमोरी। ओके, कृपा जी मैं आपको अनम्यूट करता हूं, प्लीज अनम्यूट हो जाइए। और सरिता मैडम आपको भी मैं अनम्यूट करता हूं। मुझे बताइए ये कृपा जी, आपका जो ये मेमोरी है, ये सीन है कोई या कोई किसी की इमेज है या साउंड है? कृपा जी हाँ बोलिए सर। इज दैट साउंड और इमेज और सीन जो आपको याद आती है मेमोरी में तो आपको हर्ट होता है? इमेज इमेज, ओके। एंड सरिता मैम? इमेज, वो कोई सीन नहीं है आपका? नहीं, मतलब पूरा मूवी नहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ एक इमेज ही है, राइट? ठीक है, मैं सभी को करवाता हूँ, डोंट वरी। मैंने सिर्फ इनको अनम्यूट इसके लिए किया कि मैं इनसे जान पाऊँ कि उनका इंटेंसिटी अभी कितना है। अभी समझो उसका इंटेंसिटी 10 आउट ऑफ 10 है, तो अभी ये एक्सरसाइज के बाद कितना होगा वो आप मुझे बताएंगे। ओके, आप सभी लोग स्पाइन स्ट्रेट करके बैठेंगे, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिएगा, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखिएगा। कंधे को सीधा रखिएगा। मैं
ब्रीदिंग के लिए आपको कमांड दूंगा, काउंटिंग दूंगा, उस काउंटिंग पे आपको सांसों को अंदर लेना है, रोकना है और छोड़ना है, ठीक है। ब्रीद इन 1 2 3 4 5, स्टॉप 1 2 3 4 5, ब्रीद आउट 1 2 3 4 5। किंशा जी, ये मेमोरी हटाने के लिए मैं करवा रहा हूँ। आपको अगर आपके पास पुरानी मेमोरी कोई है जिसे याद करके आपको तकलीफ होती है तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं वीडियो ऑन करके। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। ब्रीद इन 1 2 3 4 5, स्टॉप 1 2 3 4 5, ब्रीद आउट 1 2 3 4 5। अगेन ब्रीद इन 1 2 3 4 5, stop 1 2 3 4 5, breathe out 1 2 3 4 5। नाउ इमेजिन कीजिए, आपके आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपके 15-20 फीट आगे एक ब्राउन कलर का टेबल रखा हुआ है और उस टेबल के ऊपर 55 इंच का कलर टीवी रखा हुआ है सोनी का। उस टीवी का रिमोट इमेजिन कीजिए आपके हाथ में है, एक मैजिकल रिमोट आपके हाथ में है और उस मैजिकल रिमोट से आप टीवी को ऑन कर रहे हो। जैसे ही टीवी ऑन होता है, टीवी में वो मेमोरी आना शुरू हो गई है जो आपको हर्ट करती है, जो आपको दुख देती है, जिससे आपको तकलीफ होती है, वो मेमोरी आना शुरू हो गई है। सरिता मैम आ गई है वो मेमोरी टीवी में? जी। अब आपके हाथ में जो मैजिकल रिमोट है उसमें से आप उस टीवी के अंदर से आने वाली साउंड को कम करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 और पूरी तरह से वो साउंड चली गई है, नहीं गई है तो म्यूट कर दीजिएगा, उसे म्यूट करके पूरी तरह से उस साउंड को निकाल दीजिएगा। अब आपके हाथ में जो मैजिकल रिमोट है, उस रिमोट में एक स्टॉप का बटन है। उस स्टॉप के बटन को दबाते ही जो मूवी चल रही है वो मूवी स्टॉप हो जाएगी और सारी की सारी इमेजेस एक कोलाज के जैसे छोटे छोटे फ्रेम में, छोटे छोटे इमेजेस में वो टीवी में दिखना शुरू हो जाएगी। देखिए सारे छोटे छोटे इमेजेस आपको टीवी में दिखना शुरू हो गए एक ही स्क्रीन पे। अब आपके हाथ में जो मैजिकल रिमोट है, उस रिमोट में ब्लैक एंड व्हाइट का बटन दबाते ही, ब्लैक एंड व्हाइट का बटन है, उस बटन को दबाते ही सारे के सारे इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए सारे के सारे इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गए। अब आपके हाथ में इमेजिन कीजिए जो रिमोट है, उस रिमोट को साइड में रखिए और इमेजिन कीजिए एक इरेजर आपने हाथ में ले लिया है। आपने हाथ में एक इरेजर ले लिया है और उस इरेजर से आप इमेजिन कीजिए टीवी के पास चल के जा रहे हो और टीवी के पास आप पहुंच गए हो और आपको अभी अपना हैंड मूवमेंट करते हुए, फिजिकली आपको हैंड मूवमेंट करना है, इमेजिन नहीं करना है, फिजिकली करना है और देखना है, इमेजिन करना है कि टीवी का जो भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है वो मिटा रहे हो और मिटा रहे हो, मिटाते मिटाते सारा मिटते जा रहा है। देखो आपको हाथों को हिलाना है अपने। फास्ट, डू फास्ट एज मच एज यू कैन। फास्ट करो जितना फास्ट कर सकते हो और फास्ट कीजिए और तेज। अब उस इरेजर को साइड में रख दीजिए और फिर से आकर इमेजिन कीजिए कि आप अपने चेयर पर या सोफे पर आकर बैठ गए हो। अब इमेजिन कीजिए आपने फिर से अपने हाथ में टीवी का रिमोट ले लिया है और उस टीवी के रिमोट में एक शॉवर का बटन है। उस शॉवर के बटन को दबाते ही टीवी के ऊपर से शॉवर का पानी आना शुरू हो गया है। देखो पानी आना शुरू हो गया है और बच्ची कुची जो इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट थी वो धुलना शुरू हो गई है उस पानी से। उस शॉवर का पानी और तेज हो रहा है और टीवी के अंदर जो भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज था वो ब्लैक कलर का पानी नीचे बहते हुए आपके पैरों से टच होते हुए पीछे नाली में जा रहा है। देखो शॉवर का पानी और तेज हो गया है और सारा ब्लैक इमेज पूरा का पूरा टीवी से चला गया है और आपके पैरों से टच होते हुए पानी पीछे ड्रेनेज में चला गया है। अब आपको शुद्ध पानी गिरते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो सारी इमेजेस मिट गई है। अब टीवी पे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर की स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको। अब इमेजिन कीजिए आपके पास
जो रिमोट है, इस रिमोट में एक उस शावर का जो बटन है, उस बटन को दबा दीजिए क्योंकि शावर फिर से ऑफ हो जाएगा। अब उसमें एग्जिट का बटन है, उस एग्जिट के बटन को दबाते ही देखिए वो टीवी आसमान की तरफ उड़ना शुरू हो गया है। सीलिंग तोड़ के वो आसमान की तरफ उड़ गया है और देखिए वो आसमान की तरफ उड़ रहा है शावर, और वो जा रहा है सन के पास। देखिए वो सन के पास जैसे ही पहुंचा वो पूरा ब्लास्ट हो गया और उसके एशेस, उसकी राख जमीन पे गिरते हुए आप देख रहे हो। और वहां से आपके गॉड, आपके गुरु, आपके डायटी आपको देख रहे हैं और वो आपसे खुश हो गए। आपको वो बोल रहे हैं, आपने ये दिल में जो कचरा भर के रखा था वो निकाल दिया है, इसके वजह से मैं आप पे बहुत खुश हूँ और आपके लिए एक चीज भेज रहा हूँ। वो आपके लिए एक गोल्डन कलर की फ्रेम भेज रहे। देखिए उस गोल्डन कलर की फ्रेम को नीचे आते हुए, और देखो उस गोल्डन कलर की फ्रेम को उस टीवी के जगह पर आते हुए, जहाँ पे टीवी रखा हुआ था उसी जगह पर वो गोल्डन कलर की फ्रेम आकर रुक गई है। अब आपको इमेजिन करना है, तो याद करना है, उस इवेंट को याद करना है जब आप बहुत हंसे थे, बहुत खुश थे, चाहे वो बचपन की कोई यादें हो, दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, किसी के साथ हो या अकेले में हो, या कोई कॉमेडी सीन देखकर आप हंसे थे। वो इमेज को याद करना है और उस इमेज को आपको उस गोल्डन फ्रेम में ट्रांसफर करना है। देखो रिमोट में एक ट्रांसफर का बटन है, उस ट्रांसफर के बटन को दबाते ही वो इमेज उस गोल्डन फ्रेम में चली गई है। क्योंकि ये गोल्डन फ्रेम आपके गॉड, आपके गुरु, आपके डायटी ने भेजा है। उसमें एक डिवाइन की पावर से एक ब्लू कलर की लाइट, लेजर लाइट आपके हार्ट के पास आ रही है उस गोल्डन फ्रेम से। देखिए उससे उस गोल्डन कलर की लेजर लाइट को आपके हार्ट के पास आके टच हो रही है, और आप जैसे जैसे सांसों को ले रहे हो वैसे वैसे एक ब्लू कलर की लेजर लाइट, जो भी डिवाइन एनर्जी है, वो आपके शरीर के अंदर समाते जा रही है। जैसे जैसे आप सांसों को ले रहे हो वैसे वैसे ये ब्लू कलर की डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर्स आपके शरीर के अंदर समाते जा रही है। आप और रिलैक्स फील करते जा रहे हो, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो अपने आप को। आपके सर से लेकर पैरों तक ये पावर ट्रैवल कर रही है, ये ब्लू कलर की लाइट ट्रैवल कर रही है, आपके हर एक बॉडी पार्ट्स को ये कवर कर रही है। देखो प्रोटेक्शन लेयर बन गया है हर एक ब्लड सेल्स में, हर एक ऑर्गन्स में, ये एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह से मजबूत लेयर बन गया है। शरीर का जो भी इंफेक्शन था उसको उसने, उस कलर ने बाहर फेंक दिया है, पैरों से बाहर निकलते हुए देखो काले कलर को, और शरीर आपका पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, निरोगी हो गया है। देखिए अपने आप को फुल्ली एनर्जेटिक, रिलैक्स, यंग, आपका चेहरा चमक रहा है, आपके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है, और धीरे धीरे आप और सांस लेते रहो। देखो ये फीलिंग और बढ़ती जा रही है आपके अंदर। इस फीलिंग को महसूस करिए। आपके बॉडी के बाहर भी ये ब्लू कलर की लाइट और फैलती जा रही है, और आपके शरीर के बाहर भी ये पावरफुल लाइट फैलती जा रही है, और आपको एक बबल के रूप में प्रोटेक्शन लेयर तैयार हो गई है। आपके गुरु, आपके गॉड, आपके डायटी आपसे कह रहे हैं, आपने ये कदम उठाया है, ये कचरा बाहर निकालने का, आपने जीवन की तरफ आगे बढ़ने का जो सुनहरा कदम बढ़ा है, उसके लिए मैं आपके साथ हूं, और मैं आपको ये प्रोटेक्शन लेयर दिया हूं, जिसके वजह से ये प्रोटेक्शन लेयर आपकी हेल्प करेगा। इसके वजह से आपको कोई भी तकलीफ नहीं दे पाएगा। जिस किसी की भी बातें आपके पास आना चाहेगी, ये प्रोटेक्शन लेयर उसे रोक देगा। किसी की भी बातें आपको हर्ट नहीं करेगी, ये प्रोटेक्शन लेयर बाहर के बाहर ही उसे खत्म कर देगा। देखो आप जैसे जैसे सांस ले रहे हो, ये प्रोटेक्शन लेयर, ये वॉल और मजबूत होते जा रही है। कोई भी आपको अभी हर्ट नहीं कर सकता, किसी की भी बातें आपको दुख नहीं दे सकती। अभी गुरु की ब्लेसिंग्स उसमें है, गॉड की ब्लेसिंग्स आपकी उसमें है। मुट्ठियों को कस के बंद करो और फील करो उस एनर्जी को, उस पावर को। देखो गुरु की ब्लेसिंग्स आपके पूरे चारों तरफ आपके शरीर के दिखाई दे रही है। आपको सर से लेकर पांव तक शरीर में हर एक बॉडी पार्ट में वो घूम रही है। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हो, ये प्रोटेक्शन लेयर और मजबूत कर रही है। मुट्ठियों को कस के बंद करो और मन ही मन अपने गॉड, अपने गुरु, अपने डायटी को थैंक्स बोलिए और उनसे कहिएगा ये प्रोटेक्शन लेयर
जीवन भर मेरा साथ दे, ऐसी कृपा रखना, ऐसा आशीर्वाद देना। और देखिए वो आपसे हाँ कह रहे हैं, हाँ हम जीवन भर ये प्रोटेक्शन लेयर आपके साथ रखेंगे। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल कीजिए और अपनी आंखों को खोलना शुरू कीजिए। दोनों हाथों को अपने एक दूसरे के ऊपर रब करके अपने आंखों पर लगाइए और आंखें खोलिए। यस सरिता मैम। यस, लाइट फील हो रहा है। वेरी गुड। तो मेमोरी का इंटेंसिटी अभी कितना बचा है? थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। 10 आउट ऑफ कितना मार्क्स? 10 आउट ऑफ कितना मार्क्स दोगे उसे? बचा है को कि चला हाँ। गया है? बचा है तो? बचा है तो 3-4। वेरी गुड। 3-4 है, इसका मतलब वो मेमोरी चली गई आपको 3-4 दिन में के बाद इसका वो 3-4 जो भी है वो भी खत्म हो जाएगा। आपने पेड़ को काट दिया है, अब उसके पत्ते आपको 3-4 दिखाई दे रहे हो हरे हरे, वो 2-3 दिन में सूख जाएंगे और वो झड़ के गिर जाएंगे। यस भारती मैम, वेलकम मैम। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। एक मिनट। हाँ, बढ़िया लग रहा है, एकदम काम फील हो रहा है। जो खींचाव हो रहा था सर में वो कम हो गया काफी। वेरी गुड। थैंक यू। बहुत कुछ आपकी बीमारी आज ही चली गई। बहुत सारा जो था, किसके सर में दर्द होगा, माइग्रेन होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, बस इसको फिर से 2-3 बार रिपीट कर लेना रात को सोते वक्त। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। और जसविंदर मैम, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, वंडरफुल। अब वो मेमोरी कितनी बची है? 4-5 होगी। वेरी गुड। तो वो चली गई। आप फिर से रात को एक बार इसको रिपीट कर लेना, देखो और अच्छा आप महसूस करोगे, एनर्जेटिक महसूस करोगे। थैंक यू मैम। और किसी ने किया है क्या ये एक्सरसाइज जिसकी वीडियोस ऑफ है? ओके, तो हम नेक्स्ट बढ़े आगे। यस। दूसरा है हमारी प्रेजेंट की इशू। कोई चैलेंजेस हो सकता है प्रेजेंट में, आपको किसी बीमारी का, किसी फेलियर का, किसी चैलेंज से गुजर रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा, ये हम है और ये प्रॉब्लम है। अक्सर लोग, कुछ लोग बताते कि वे एक बड़ी परेशानी में घिरे हुए, और बताते हुए इशारा भी करते, आई एम इन अ बिग प्रॉब्लम, आई एम इन अ बिग प्रॉब्लम। दूसरी स्थिति में कुछ लोग बताते, आई एम फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम। ये पहले से तो अच्छा है, बेहतर है, लेकिन अभी भी समस्या उनसे बड़ी है और उनकी सेल्फ इमेज छोटी है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 चम्मच नमक है, आप एक ग्लास में मिला देंगे तो आप उसे चख नहीं सकते। यदि इस 1 चम्मच को हम एक बाल्टी पानी में मिलाए तो आप इसे चख सकते हैं, लेकिन पीना अभी भी नहीं चाहोगे। और यदि 1 चम्मच नमक को हम किसी झील में या किसी नदी में मिला दे तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? ध्यान रखिएगा, हमारी सबकी जिंदगी में 1 चम्मच नमक कॉन्सेंट्रेट है, और वो आपके और मेरे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स। बस फर्क इतना है कि आप एक गिलास पानी को जैसे है, आप एक गिलास पानी जैसे है, या आप एक बाल्टी पानी जैसे है, या आप एक झील या नदी जैसे है। आज मैं आपके परसेप्शन को बदलकर आपकी सेल्फ इमेज यानी आत्म छवि को इतना बड़ा बना दूंगा कि आप अपनी समस्याओं से बड़े बन जाएंगे और उन्हें रिजॉल्व करने के लिए रास्ते निकाल ले।
और आपके पास सभी पॉसिबल सॉल्यूशन है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास किसी भी सिचुएशन में सिर्फ एक ही चॉइस है तो आप एक रोबोट है, यानी मशीन है आप। अगर आपके पास दो चॉइसेस है तो आप डिलेमा यानी द्वंद्व में है। एज अ ह्यूमन बीइंग यू शुड हैव मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल अप्रोचेस, मल्टीपल सॉल्यूशंस। तीसरा बड़ा इश्यू है लॉस्ट होप, यानी भविष्य का खो जाना। बहुत से लोग यदि किसी लंबे समय से बीमारी का सामना कर रहे हैं या किसी फेलियर या नाकामी से गुजरने लगते हैं तो वे कहते हैं कि उन्हें अपना भविष्य नजर नहीं आता, अंधकारमय नजर आता है। और ये बताते हुए उनके हाथ, उनकी आंखें और माथे के आगे आता है, कुछ दिखाई नहीं देता या कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, जब मनुष्य के पास कुछ भी नहीं हो तो एक चीज अवश्य हो सकती है, उसकी आशा, उसकी होप, उसका भविष्य, फ्यूचर। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट एक गिफ्ट है, यानी उपहार है। मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया है, एक सीक्रेट बताता हूं मैं आपको, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य असल में भव इष्ट है, यानी मन चाहा घटित होना, और प्रेजेंट प्री प्लस सेंट, अर्थात पहले से भेजा हुआ। जो अब तक हमने माना था और चाहा था वो हमारे सामने आ रहा है। हमें अपने पास्ट में अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे रिपेयर करना आना चाहिए और फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर करना आना चाहिए। अपने पास्ट को रिपेयर और फ्यूचर को प्रिपेयर करने का वृत्त लेकर या मानकर जब हम अपने प्रेजेंट में आएंगे तभी ये वृत्त मान हमारा वर्तमान होगा, हमारा प्रेजेंट होगा, हमारा गिफ्ट होगा। आज मैं आपसे ये वायदा करता हूं कि आज आप इसी सेमिनार से एक भविष्य, एक आशा की उम्मीद अपने साथ लेकर जाएंगे, अपनी बेहतर सेहत के लिए, अपनी बेहतर सफलता के लिए, अपने बेहतर रिश्तों के लिए, ब्राइट फ्यूचर की एक्सरसाइज से पहले मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। ये कहानी है जर्मनी के एक डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर हेमर। डॉक्टर हेमर की बेटे की उम्र 18 वर्ष की आयु थी। उस समय उसकी असमय मृत्यु हो गई एक घटना में, और इस घटना के 1 साल के बाद उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। उन्होंने ये देखा कि जब वे अपने काम में व्यस्त होते, बिजी होते, तो उनका कैंसर ठीक होने लगता है, और जब वे अपने बेटे को वो घटना, बेटे की घटना को याद करते, उसके मृत्यु को याद करते, तो कैंसर बढ़ने लगता है। तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके बेटे की मृत्यु की घटना और कैंसर में जरूर कोई ना कोई संबंध है। उन्होंने एक टीम बनाई और जर्मनी और यूरोप के कैंसर पेशेंट पर रिसर्च की। रिसर्च में उन्होंने ये पाया कि सभी किसी ना किसी इमोशनल इश्यू से प्रभावित थे, जिसे सिग्निफिकेंट इमोशनल एक्सपीरियंस कहा गया, जिस कारण वो अपनी फ्यूचर बिल्डिंग यानी भविष्य को खो चुके थे। डॉक्टर हेमर ने एनएलपी को पढ़कर टाइमलाइन नाम की एक टेक्निक को डिजाइन किया और उन पेशेंट का भविष्य बिल्ड करने में उनकी सहायता की। हालांकि उन्होंने इसे जर्मन न्यू मेडिसिन का नाम दिया, आप गूगल कर सकते हो, जर्मन न्यू मेडिसिन, JNM, जिसमें पेशेंट को सिर्फ परसेप्शन को बदलकर उसके फ्यूचर को बिल्ड कर उसका इलाज किया जाता है, जिससे अब कई सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया भी जा रहा है। डॉक्टर हेमर ने अब तक 10,000 से अधिक कैंसर पेशेंट का सफल इलाज कर चुके हैं। आप सभी मेरे परिवार के हैं। मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज अपना एक सुनहरा भविष्य देखे, आपके जीवन में एक नई आशा का जन्म हो। आइए शुरू करते हैं। मैं सभी को म्यूट कर देता हूं ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो।
सभी को अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। अपनी आंखें बंद करो और कंधे को सीधा करो, स्पाइन को स्ट्रेट रखो। अब इमेजिन करो कि आपके सामने आप ही के जैसा अदर यू, यानी डुप्लीकेट, आपका क्लोन अदर यू है, और उसने सीख लिया कि कैसे शांत रहना है, कैसे खुश रहना है, कैसे हेल्दी रहना है, कैसे रिच होना है, कैसे पढ़ना है, कैसे खेलना है, कैसे मुस्कुराना है, या कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हो आप कर नहीं पा रहे हो, वो काम करते हुए देखिए अदर यू को। क्या आप इस पिक्चर को अपने मेंटल स्क्रीन पर देख सकते हो? अगर देख सकते हो तो हैंड रेज कीजिए। ओके, हाथों को नीचे रखिए। अब उसे बड़ा बनाओ, कलरफुल बनाओ, एट्रैक्टिव बनाओ। इमेजिन करो कि वहां पे बढ़िया सी म्यूजिक चल रही है और अदर यू के पीछे एक म्यूजिक चल रहा है। अदर यू ने सीख लिया है कि कैसे शांत, कैसे खुश रहना है, कैसे एनर्जेटिक रहना है, कैसे हेल्दी रहना है। जहां पर आपको गुस्सा आता है, अदर यू ने पूरी तरह सीख लिया है कैसे कॉन्फिडेंट रहना है। अब इमेजिन करो कि अदर यू ये सारी चीजें सीख ली है अदर यू ने, तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या क्या फायदे हो रहे हैं उसके। अदर यू की हेल्थ अच्छी हो गई है, अदर यू वेल्दी हो गया है, रिच हो गया है, अदर यू के उसके बच्चों के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ, उसके फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस हो गए। जो भी बेनिफिट होना चाहिए वो आप अदर यू में देखो। अदर यू उन बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहा है या कर रही है। अब उसे बड़ा बनाओ, कलरफुल बनाओ। इमेजिन करो अदर यू को ये सारी चीजें मिल रही है, तो उन्हें कौन अप्रिशिएट कर रहा होगा? उन एप्रिसिएशन को सुनो। इमेजिन करो कि कोई खास व्यक्ति, सेलिब्रिटीज अदर यू को अप्रिसिएशन कर रहे हैं, क्योंकि अदर यू ने सीख लिया है किस तरह से हेल्दी रहना है, वेल्दी रहना है, शांत रहना है, खुश रहना है। इन सब की अपने मेंटल स्क्रीन पर पिक्चर बनाओ। अब उन सारी पिक्चर को इमेजिन करते हुए एक गोल्डन कलर की बॉल में, छोटी सी बॉल में डालो, और उस फोल्डर को, उस गोल्डन बॉल को इमेजिन करो कि आप जिनको आदर्श मानते हो, जिनको अपना आइडल मानते हो, वो उस गोल्डन बॉल को उठाकर आपके मेंटल स्क्रीन में, मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में चिपका रहे हैं। और जैसे ही मैं कहूंगा 1 2 3 गो, तो उस गोल्डन बॉल को फैलते हुए देखो अपने मेंटल स्क्रीन पर। 1 2 3 गो, देखो उस गोल्डन बॉल को फैलते हुए अपने मेंटल स्क्रीन पर फैलते जा रहे हो। और अदर यू आप में समा रहा है या समा रही है। इस पल को देखते रहे, महसूस करो, साउंड को सुनो, कलरफुल बनाओ, बड़ा बनाओ, बेहतरीन बनाओ, और कुछ देर तक इसका आनंद लेते रहो। अपने आप को खुश रहते हुए देखो। देखो अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, उन सारे रिलेटिव्स को, दोस्तों को, सेलिब्रिटीज को आपको अप्रिशिएट करते हुए। जो अदर यू ने किया था वो सारा का सारा बिहेवियर, सारा का सारा पैटर्न आप में समा रहा है। फिर से उस गोल्डन बॉल को कन्वर्ट करो छोटी सी बॉल में, और 4 से 5 गोल्डन बॉल आपके अभी मेंटल स्क्रीन में आपके आइडल डाल रहे हैं। और 1 2 3 बोलूंगा तो तुरंत फ्लैश होगी एक एक इमेज। 1 2 3 गो, देखो एक एक इमेज फ्लैश होती जा रही है। आप रिच हो गए, आप हेल्दी हो गए। देखो रिच हो गए तो कैसे दिख रहे हो आप, कैसे चल रहे हो, आपका चलने का स्टाइल देखिए। देखिए आप किस तरह से लोगों से बात कर रहे हो, आप क्या क्या काम कर रहे हो लोगों के लिए। देखिए आप हेल्दी हो गए तो किस तरह से चल रहे हो, आपका चलने का स्टाइल देखिए, आपने क्या कपड़े पहने हो, देखिए अपने आप को, अपने मेंटल स्क्रीन पर देखिए, पिक्चर को बड़ा बनाइए, बिगर, ब्राइटर, बोल्डर कीजिए, क्लियरली देखो, साउंड को सुनो, आपको कौन कौन अप्रिशिएट कर रहा है, कुछ देर तक इसका आनंद लेते रहो। फिर से एक बार करते हैं, 1 2 3 गो, देखो उन सारे गोल्डन बॉल्स को फैलते हुए। देखो आप हेल्दी हो गए, आप कॉन्फिडेंट हो गए, तो बिजनेस में आप जो भी काम कर रहे हो उसमें किस तरह से कॉन्फिडेंटली आप काम कर रहे हो,
कैसे अपने कलीग को, अपने टीम को आप मोटिवेट कर रहे हो, कैसे आपको सभी लोग तालियां बजा रहे, सभी लोग आपसे खुश हो गए, सभी लोग आपसे जानना चाहते हैं इसका राज, आपकी तारीफ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपको मिलने के लिए रुके हैं। देखिए दूसरी पिक्चर में देखिए आप किस तरह से रिच हो गए, वेल्दी हो गए हो, आपका बैंक मैनेजर आपको बोल रहा है यू आर फाइनेंशियली फ्री, सुनिए उसकी आवाजों को। देखो आप कितने बड़े घर में रह रहे हो, आप कौन सी अपनी ड्रीम कार चला रहे हो, देखो आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ 7 स्टार होटल में, देखो कोई पॉलिटिशियन से, कोई क्रिकेटर से, कोई एक्टर से, ये सारे के साथ आपकी अच्छी मित्रता हो गई है। इनमें से कोई बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपसे सलाह ले रहे कि इसके लिए आगे क्या करना चाहिए। देखो उन सारे इमेजेस को फिर से करेंगे, सारे गोल्डन बॉल्स को देखिए, 100 से ज्यादा गोल्डन बॉल्स आपके माइंड में, मेंटल स्क्रीन में आ गए हैं, और एक एक करके सारे इमेजेस को फ्लैश करना शुरू कीजिए। 1 2 3 को देखो, सारे इमेजेस को आप हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग दिख रहे हो, अपना चमकता चेहरा देखो, सुंदर सी ड्रेस देखो, देखो अपने चलने का स्टाइल किस तरह से हो गया है, अपने आप को हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग देखो, देखो आप समाज में क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप रिच हो गए, वेल्दी हो गए हो, आप समाज के लिए किताबें बांट रहे हो, बुक्स बांट रहे हो, उनके लिए अनाथ आश्रम खोल रहे हो, स्कूल्स खोल रहे हो, हॉस्पिटल्स खोल रहे हो, देखो कितनी सारी दुआएं आपको मिल रही है। और क्या क्या कर रहे हो आप, जिसके लिए आप एक खास, एक निराली व्यक्ति दुनिया के लिए हो गए हो। देखो अपने आप को फुल्ली कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, लाखों लोग आपको सुनने के लिए रुके हैं। देखो आपका चलने का स्टाइल, आपकी एनर्जी, आपके चेहरे पे स्माइल, खिलखिलाती आंखें, चमकता हुआ चेहरा, देखो ये पूरी तरह से आपके अंदर समा गया है, पूरी तरह से आप एंजॉय करते रहो इसके 2-3 मिनट तक। अभी अब धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू कीजिए, दोनों हाथों को रब करके अपने आंखों पर लगाइए। कैसे फील हो रहा है मैडम? मुझे ना डेड Yes. बॉडी दिखी अभी। अच्छा, कुछ है पास्ट में किसी का था आपका? नहीं, अच्छा, तो वो नजर में नहीं आया किसका था? नहीं, सम मेल टाइप। और कहाँ, आप आंखें बंद कीजिए और देखिए कहाँ पे था वो लोकेशन बताइए मुझे हाथों से। ऐसे जैसे मेरे बिल्कुल सामने ही है, अब ओके लोकेशन कोई नहीं। ओके, अब आंखें बंद कीजिए, मैं आपको और एक एक्सरसाइज कराता हूँ, ये एनएलपी की टेक्निक है। आंखें बंद कीजिए, और आपके हाथ में एक रिमोट है, वो जो टीवी का रिमोट था उस तरह से एक रिमोट है, और उस रिमोट से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। उस इमेज को, उस इमेज को एकदम दूर भेजिए, आसमान में भेजिए, भेजिए, और दूर भेजिए, और दूर भेजिए, और दूर भेजिए, और दूर भेजिए। अब उसमें एक फायर का बटन है उस रिमोट में, उस फायर के बटन को दबाते ही वो इमेज पूरी तरह से जल के खाक हो गई है, और आपको अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब रिलैक्स हो जाइए। अब देखिए आंखें बंद करके दिख रहा है अभी? नहीं। ओके, वेरी गुड। ये आपको क्यों हुआ? क्योंकि आपका फ्यूचर आप नहीं देख पा रहे थे, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस थे। अब ये निकल गया तो वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको, जो आपके अंदर भरा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में, वो आपके सामने लाएगा। क्योंकि ये माइंड को अच्छा लगा प्रोसेस जो आपने अभी किया थोड़ी देर पहले, जो 2 एक्सरसाइज की,
माइंड बोल रहा है ये भी कचरा रखा है इसको भी निकाल, ये भी रखा है उसको भी निकाल। रात को भी आपको हो सकता है जिसने जिसने एक्सरसाइज किया, तो डरिएगा मत, ये माइंड आपको सपोर्ट कर रहा है, ये जो कचरा रखा है उसको निकालने के लिए बोल रहा है, आपको हिंट दे रहा है। तो आपको बस वही सेम चीज जो मैंने करवाया उसको इमेजिन करके करना है। यस भारती मैम, कैसा लगा मैडम? बढ़िया लगा सर। एक्चुअली जो मेरी इच्छाएं थी कि मैं ऐसी होनी चाहिए, मुझे ऐसा होना था, पर जो भी मेरी इनएबिलिटी के लिए मैं हो नहीं पाई, तो आज मैंने वो सब रूप अपने देख लिए। वंडरफुल वंडरफुल। और आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये रोज कीजिए। हमारा वर्कशॉप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको तो इससे बहुत कुछ ज्यादा मिलेगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप ये एक्सरसाइज भी रोज कीजिए, देखिए आपको 10 दिन 15 दिन में क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, जो श्योर भी श्योर। आप रोज करिए इमेजिन, और ओके डेफिनेटली आप वो अचीव कर पाएंगे जो आपको करना था। ओके, थैंक यू थैंक यू। वेलकम मैम। यस सोनाली मैम, ओवर टू यू। Yes, sir. Thank you all participants for this wonderful Sachin sir's magical meditation. तो अभी मैं एंड के लास्ट इंट्रोडक्शन का वाइंड अप करना चाहूंगी। ऑल अबाउट द कोर्स। दोस्तों, आपने अनुभव किया है कि आप सिम्हा की मदद से अपने माइंड के प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हैं। इल हेल्थ, फेलियर, पॉवर्टी, पुअर रिलेशनशिप के सभी माइंड पैटर्न से छुटकारा पा सकते हैं। और मेरा यह मानना है कि आप इसका अवश्य लाभ लें, केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने करियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए। डू यू ऑल पीपल एग्री? आप सभी सहमत हैं मुझसे? यस, वंडरफुल। हमारे जीवन में चमत्कार, मैजिक प्राप्त करने के लिए आज एक पॉजिटिव स्टेप उठाएं, और यह कदम अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने के लिए है। एंड टू अचीव न्यू आउटकम्स, I am offering a unique, life-changing workshop for limited people. I repeat, Simha Group is offering a life-changing workshop for limited people, and we are starting our workshop from 11th September to next 3 months. 11th September से हम वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं और वो नेक्स्ट 3 महीनों तक रहेगा। This workshop will help you to get rid of all mental blockades that were created by past bad events, transform your mind to handle outgoing issues of present, create new beliefs for better health and success, resolve your worry pattern and look forward in life, handle unwanted sound and sensation of anxiety, help your people to make their life masterpiece. ये सब हम सिखा रहे हैं हमारे वर्कशॉप में। तो आई रिक्वेस्ट सचिन सर टू प्लीज शो पीपीटी ऑफ आवर। अब टेक्निकली हम क्या क्या सिखाने वाले हैं इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, past life regression therapy, health psychology, clinical hypnotherapy, life skill techniques, new code NLP, this is very important technique friends, neuroscience parenting, dynamic memory mastery, counseling psychology, NLP for health। ये 10 चीजें या 10 all 10 courses which we are going to give in our Simha 3 months duration is worth rupees 2,66,600। hold on, इस 10 कोर्सेज की रियल कीमत 2,66,600 है।
But इस 10 courses के साथ we are giving you, this is a internet marketing tool that is called 100 Premium PLR, जो आपको इंटरनेट की मार्केटिंग के टूल्स है जिसके अलग अलग नाम है। तो ये आपका बिजनेस अपग्रेड करने के लिए सॉफ्टवेयर है। तो इट इज 1 लाख रुपीज वर्थ और वी आर गिविंग यू pineal gland activation, which is worth rupees 36,000, telepathy brainwave, which is 64,000, and premium PLR MMR software, which is worth rupees 1 lakh. तो टोटल ये 3 फ्री कोर्सेज की कीमत है 2 लाख रुपीज फ्रेंड्स। 10 कोर्सेज जो इनिशियली मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे प्लस 3 कोर्सेज which is from ourselves, our side to you as a gift or a bonus. So total we are giving you 12 type of courses which is worth rupees 4,66,600. But friends, this is not it. You can see on the screen इस सब की कीमत 4,66,000 आपको भरनी नहीं है, आपको इतना पे नहीं करना है, बिकॉज हमको पता है कि ये कोरोना का सिचुएशन है, इट इज अ पेंडेमिक। अगर हम लाइव अरेंज करें, लाइव सेशन 1 to 1 आपको बुला के अटेंड करें, सब प्रॉपर बैंक्वेट में अरेंज करें, मील अरेंज करें, ब्रेकफास्ट या एक मील, तो इसकी कीमत इतने तक जाएगी। बट वी ऑल नो ऑल आर स्टक इन कोरोना पेंडेमिक, so we all want to help you, so we are cutting it off. Attention friends, इसकी कीमत now 50% कम हो रही है, but more than 80% we are cutting off the actual rate of this whole total package of 10 plus 3 courses, and which is only 23,555 rupees. Friends, only 23,553 courses. Every mode of payment is acceptable by us. Details you can see on our given number, and again you can pay through EMI also. आपको चैट में नंबर्स दिखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड वन मोर अनाउंसमेंट फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यू कैन अर्न एंड लर्न साइमल्टेनियसली, आप लर्न भी कर सकते हो और अर्न भी कर सकते हो इस सिम्हा वर्कशॉप से। कैसे मैं आपको बोलूंगी। अगर आपने फॉर्म फिल किया है, गूगल फॉर्म, इफ यू आर फिलिंग ऑफ एनरोलमेंट, so you can give your reference number to your friend, because we believe in spreading of knowledge. Friends, अगर आप किसी फ्रेंड को ये कोर्स रेकमेंड कर रहे हो या उनको अपना सिम्हा ग्रुप के बारे में इंटरेस्टेड है, तो उनको बोल रहे हो एनरोल करने के लिए, तो दे कैन गिव योर रेफरेंस नेम एंड रेफरेंस कोड विल बी गिवन इन द फॉर्म। एंड अटेंशन फ्रेंड्स, इसमें से आपको 20% भी मिलेंगे। ओके, so you can earn and learn simultaneously through this course. EMI options are accepted, and every mode of payment is also accepted. Details are given in chat box with the respected numbers. You can ask for the details and registration. So friends, I request you to grab the opportunity. 23,555 एक ऐसी छोटी सी अमाउंट है जिससे आपकी पूरी लाइफ आई एश्योर चेंज हो जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी। यू विल बी इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली बी हैप्पी एंड कंटेंटेड to spend your time and money in this course. We will help you in every aspect. You will develop your life skill, and lot of magical techniques will be taught in our course. So I welcome you and I request you all to grab the opportunity, because
We are getting a wonderful positive response from our people, our audience, and we have limited seats. So I request you all to enroll as soon as possible and spread the word to your friends so you can get the 20% discount too. Over to you, sir. Thank you. Have a safe time and safe life. Thank you for spending your time with us. Simha Group gives you a thanks. Sir, over to you. थैंक यू सो मच सोनाली मैम, आपने कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी बता दी। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, और मैं अभी सभी को अनम्यूट करता हूं ताकि आपके पास कोई सवाल होंगे तो आप मुझे पूछ। Sir, unmute yourself, sir. ओके, तो फ्रेंड्स, आप किसी को अगर पूछना है सवाल तो यू कैन अनम्यूट एंड आप पूछ सकते हैं। ओके, तो किसी के पास कल्पवृक्ष जी, शायद आपका वीडियो हैंग हो गया। भारती मैम, जसविंदर जी, कुछ है सवाल आपके पास? यस कल्पवृक्ष जी, आपको कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो? फिर से हैंग हो गया। ओके, तो फिर हम यहीं पे मीटिंग को एंड करते हैं। आप सभी के पास नंबर तो आ गए। मैं सचिन दिवटे आप सभी को धन्यवाद देते हुए आपकी खुशी, आपकी सेहत, आपकी फ्यूचर की मनोकामना करते हुए मीटिंग को। सर कुछ कहना है कल्पवृक्ष सर? ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।